हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फाइनेंशियल प्लानिंग इज इसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन future operations. The objective of financial planning is to ensure that enough funds are available at right time. Okay guys, if adequate funds are not available for the firm was not able to honor its commitments and carry out its plans. On the other hand, if excess funds are available, it will unnecessarily add to the cost and may encourage wasteful expenditure. Financial planning process tries to forecast all the items which are likely to undergo changes. The following are two main objectives of planning. पहला क्या है? To ensure availability of funds whenever required. उसके बाद दूसरा क्या है objective? To see that the firm doesn't raise resources unnecessarily. And after that अब हम डिस्कस करेंगे importance of financial planning. It helps in forecasting what may happen in future under different business situations. It helps in avoiding business shocks and surprises and help the company in preparing for the future. It helps in coordinating various business functions, for example, sales and production functions, by providing clear policies and procedures. Detailed plans of action prepared under financial planning reduces wastage, duplication of efforts, and gaps in planning. It tries to link the present with the future. It provides a link between investment and financing decisions on a continuous basis. By spelling out detailed objectives for the various business segments, it makes the evaluation of actual performance easier. राइट गाइस, तो चलिए अब हम आगे जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का ही, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। इन अदर वर्ड्स, the capital structure represents the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure. What kind of capital structure is best for the firm is very difficult to define. The capital structure should be of such which increases the value of equity share or maximizes the wealth of the equity shareholders. Both debt and equity has cost as well as risk. Capital structure of business affects the profitability and financial risk. A best capital structure is one which results in maximizing the value of the equity shareholders or which brings a rise in the price of the equity shares. Generally, we use the concept of financial leverage or trading on equity, और उसका भी मतलब क्या है? Debt upon equity. So with debt funds, companies funds and earning increase because debt is a cheaper source of finance, but it is very risky to involve more debt in capital structure. More debt will result in increase in earning only when rate of earning of a company is कब? जब return on investment is greater than interest on debt. But अगर return on investment is less than, मतलब interest on जो debt है वो ज़्यादा है, it means more loss of money. तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे गाइस फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला क्या है? कैश फ्लो पोजीशन। डेट या इक्विटी में से अगर हमें चूज करना, तो नेचुरली जब आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डेट चूज करोगे, अदरवाइज इक्विटी चूज करोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर हायर है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट अगर हायर है तो आप डेट चूज करोगे, अदरवाइज इक्विटी चूज करोगे। डेट सर्विस कवरेज रेशो, प्रॉफिट ऑफ आफ्टर नेट प्रॉफिट प्लस डेट प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश राइटिंग ऑफ रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ये फॉर्मूला होता है डेट सर्विस कवरेज रेशो का, DSCR भी बोलते हैं इसको। अगर ये हायर है तो हम डेट लेंगे, अगर ये लोअर है तो हम इक्विटी पे जाएंगे। ठीक है जी।
तो अब इसका फोर्थ बेसिस है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, अगर हायर है तो हम डेट पे जाएंगे, अगर लोअर है तो हम इक्विटी पे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? अगर कॉस्ट ऑफ डेट है कम है तो हम डेट पे जाएंगे, अगर मोर है कॉस्ट ऑफ डेट तो नेचुरली इक्विटी पे शिफ्ट हो जाएंगे, इक्विटी को प्रेफर करेंगे। टैक्स रेट अगर हायर है तो हम डेट लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट फिर उसमें कट जाएगा ना एक्सपेंस के फॉर्म में, ठीक है जी। और इक्विटी के लो इक्विटी हम चूज करेंगे जब टैक्स रेट लो होता है, क्योंकि फिर डिविडेंड पे भी हमें ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हाई है तो नेचुरली हम डेट लेंगे, अदरवाइज इक्विटी चूज करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है तो डेट चूज करेंगे, अदरवाइज इक्विटी चूज करेंगे। रिस्क कंसिडरेशन का मतलब लो रिस्क है तो डेट चूज करेंगे, हाई रिस्क है अगर डेट लेने में तो हम इक्विटी चूज करेंगे। लेस फ्लेक्सिबल है तो हम डेट चूज करेंगे, अगर मोर फ्लेक्सिबल है तो इक्विटी चूज करेंगे। कंट्रोल अगर हम कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहते शेयर होल्डर्स तो डेट पे जाएंगे, अदरवाइज इक्विटी चूज करेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर डिप्रेशन है तो हम डेट चूज करेंगे, और बूम है तो इक्विटी चूज करेंगे। स्टॉक मार्केट कंडीशन अगर गुड नहीं है तो डेट चूज करेंगे, अगर इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, हमें पैसा इजीली मिल सकता है तो नेचुरली हम इक्विटी चूज करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, डोंट एनीवन, ठीक है, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। किसी को भी आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। आपको पहले अपनी बेस को देखना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अपनी लिमिटेशंस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे आप इंटरेस्ट पे करने की हालत में हो या नहीं हो, तभी आप चूज कर पाओगे डेट है या इक्विटी है। राइट गाइस, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। So naturally fixed capital, no price for guessing. It is related to the investment decision. It involves funds in the fixed asset, plant, machinery वगैरह। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल पे। बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल पॉइंट्स हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, कब आपको मोर कैपिटल रखनी है, कब आपको लेस फिक्स कैपिटल रखनी है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में आपको ज़्यादा चाहिए और ट्रेडिंग में एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन में अगर लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल, और अगर स्मॉल स्केल है तो क्वाइट ऑब्वियस लेस कैपिटल चाहिए। उसके बाद क्या, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव है तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना है, अगर लेबर इंटेंसिव है तो कम पैसा लगाना है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मॉडर्न है तो मोर पैसा लगाना है, अगर मॉडर्न नहीं है तो कम पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड कैपिटल में। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है तो हमें हाई रखनी है ना, हाई है अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस तो मोर कैपिटल चाहिए, अगर लेस स्कोप है आगे ग्रोथ का तो ज़्यादा पैसा फिक्स्ड कैपिटल में नहीं इन्वेस्ट करना। डाइवर्सिफिकेशन के चांसेस है तो मोर कैपिटल चाहिए, अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी तो लेस कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू अदर सिचुएशन। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस अगर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इंस्टॉलमेंट्स पे हमें कुछ नहीं मिल सकता फैसिलिटी, ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट पे हमें कुछ नहीं मिल पा रहा या इंस्टॉलमेंट पे लेना आसान नहीं है हमारे लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी फिक्स्ड एसेट ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। अगर इंस्टॉलमेंट्स पे या हायर परचेज पे या फाइनेंस पे हमें ईजिली मिल जाएगा, लीजिंग मिल जाएगी, तो फिर हमें अपना पैसा उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एज कम्पेयर टू कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर तो हम जॉइंट वेंचर्स हैं तो हमें फिर ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है, हम शेयर कर सकते हैं दूसरे को ऑनर के साथ, को पार्टनर के साथ या को वेंचरर के साथ। और इधर अगर आपके पास जॉइंट वेंचर नहीं है तो अब आपको लेस कैपिटल रखनी है, ठीक है जी। अगर आप समझ गए ना, अगर आपके पास जॉइंट वेंचर है तब तो आपको कम कैपिटल रखनी है, अगर जॉइंट वेंचर नहीं है तो ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए और आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो तो आपको पैसा कम चाहिए। राइट गाइस, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब लास्ट पोर्शन है वर्किंग कैपिटल का। सो वर्किंग कैपिटल क्या, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं हम, करंट एसेट्स को। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल मीन्स सेम, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल का मतलब हम एक ही होता है, ठीक है गाइस। तो वर्किंग कैपिटल में अब आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, ये आपको सबको पता है। तो करंट एसेट में हमारा क्या आएगा
कैश जो भी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी आइटम्स विद इन 1 ईयर कैश में, स्टॉक, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल एटसेट्रा। और सीएल में क्या आएगा, सीएल में हमारा आ जाएगा क्रेडिटर्स, ठीक है जी, बिल्स पेबल जिसको हम ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, बस ओके। और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मेजरली ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अब वो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहला क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अदर ट्रेडिंग में कम चाहिए। स्केल ऑपरेशन नेचुरली लार्ज है तो आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, अदरवाइज लेस कैपिटल चाहिए। बिजनेस साइकिल, बूम है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, डिप्रेशन है तो कम पैसा चाहिए। सीजनेबल फैक्टर, अगर पीक सीजन है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर ऑफ सीजन है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, अगर हम कस्टमर को ज़्यादा पीरियड के लिए क्रेडिट देते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा फिर चाहिए। स्मॉल पीरियड कब होगा, जब स्मॉल पीरियड है हमारे क्रेडिटर्स का तो ज़्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट अलाउड फ्रॉम सप्लायर्स, ये नेचुरली ऊपर वाले से और रिवर्स होता है। अगर हमारा क्रेडिटर हमें कम पीरियड अलाउ कर रहा है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर हमारा सप्लायर हमें ज़्यादा पीरियड के लिए उधार देता है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। नेचुरली आगे अगला पॉइंट है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जब होती है तो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल में, और डिफ्लेशन के वक्त कम पैसा चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल अगर लॉन्गर है, ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और लेस स्मॉलर चाहिए, स्मॉलर के केस में हमें कम पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर तो हाई है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लो, इसमें लो आएगा, लो है तो हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि इजीली नहीं मिल पाएगा, और इसमें हाई है, अगर इजीली मिल सकता है तो फिर तो हमें ज़्यादा पैसा उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हाई है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस लो है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और कम कंपटीशन है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल अगर लॉन्ग है तो ज़्यादा पीरियड ज़्यादा पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल में, और अगर प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है तो कम पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल में। ठीक है गाइस, तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।